ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ ساتھ ساتھ ہم ساحل سمندر کی سیر بھی کرتے ہیں اور ساتھ پانی کی اہمیت کے اوپر ہاں جی، بات کر لی جائے۔ پانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پانی واحد چیز ہے، ہمیں تخلیق کائنات میں اس کی تخلیق کا ذکر نہیں ملتا، پانی کی تخلیق کا ذکر ہمیں نہیں ملتا۔ ہاں، پانی کا اگر پہلی بار ذکر آیا ہے تو وہ یہی ہے کہ خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ پانی، اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ پانی کی تخلیق شاید خدا نے بہت پہلے سے کر رکھی تھی اور اس کی سطح پر اس کی جنبش کرتی تھی کہ پوری تخلیق ہمیں نظر آتی ہے، لیکن پانی کی تخلیق کا ہمیں بائبل مقدس میں ذکر نہیں ملتا۔ کیا بات ہے، کیا بات! ڈاکٹر صاحب بہت زبردست پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے کہ بائبل مقدس کے جینیسس چیپٹر 1 کے اندر ہمیں روح جنبش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن پانی کا بننا جو ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ ایک بہت مین پوائنٹ سر جینیسس کا جو ہے کہ وہ یہاں پر ہمیں ہائی لائٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ خداوند کے نام کی شکر گزاری ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ ساحل سمندر پہ گھومتے ہوئے ایک نیا علم جو ہے کہ وہ ہمیں ملا ہے۔ اور ایک اور بات جو پانی کے متعلق بہت زبردست ہے وہ یہ ہے کہ جانداروں کی پیدائش کا تعلق بھی پانی سے ہے۔ پانی کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے، یعنی کہ زندگی کا دار و مدار جو ہے وہ پانی کے اوپر ہے، اور زندگی پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ پانی کے پاس ہے۔ پانی جو ہے جانداروں کو کثرت سے پیدا کرتا ہے، اور سائنس بھی آج کی یہ ثابت کرتی ہے کہ سب سے جو پہلی مخلوقات تھی وہ پانی کے اندر ہی تھی۔ پانی کے اندر کی جو مخلوقات ہیں یہ اربوں سال پرانی ہے سائنس کے مطابق، اور مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے انسان تک یہ کریشن پہنچی ہے، جس کی وجہ سے جو 6 دنوں کا نظریہ ہے اس کے بارے میں بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ 6 دن 24 گھنٹے والے دن نہیں تھے، بلکہ یہ بہت لاکھوں سالوں ہزاروں سالوں پر محیط دن بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ اس کے متعلق متنازع یہ ایک تشریح ہے، لیکن یہ ایک تشریحات میں سے ایک تشریح ہے کہ ایک دن جو ہے وہ ہزاروں سال کے برابر بھی ہو سکتا ہے، کروڑوں سال کے برابر بھی ہو سکتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈائنوسار کا دور تھا ہو سکتا ہے کہ وہ تیسرا یا چوتھا روز ہو خدا کے نزدیک۔ جی ڈاکٹر صاحب، اچھا یہاں پر ایک اور پوائنٹ جو میرے ذہن میں آیا میں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم آسمان کی کھڑکیاں کھلتے ہوئے بھی ہاں جی، کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں جینیسس میں، اور پھر ایک عالمگیر طوفان کی ہم بات کرتے ہیں ہاں جی، جو نوح کے زمانہ میں آ رہا ہے، تو تب ہم سمندر کی جو ویلیو ہے اس کو کیسے لیں گے؟ سمندر کے لیے لکھا ہے بڑا سمندر کے سب سوتے پھوٹ نکلے۔ جی جی، اور سمندر جو ہے یہ عام طور پر اس کو 3 کیٹیگریز میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک اپر واٹر ہے، ایک درمیان والا واٹر ہے جس کو بحر اوقیانوس کہتے ہیں، بہت ٹھنڈا پانی ہوتا ہے وہاں کا، جہاں پہ ٹائٹینک ڈوبا تھا۔ یہ بہت ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، بہت گہرا یہ سمندر ہے اس جگہ سے، اور نیچے کا پانی بھی نگا پانی جس کو کہتے ہیں، نیم گرم پانی اس کو کہتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ سمندر جو ہے سارے سوتے پھوٹ کے بڑا سمندر پھوٹ نکلا، بڑے سمندر نے بھی چھلے مارنا شروع کر دی، اور آسمان کی جو کھڑکیاں ہیں جب ہم دیکھتے ہیں پہلے چیپٹر میں تو فضا میں الگ پانی کیا گیا، زمین کے پانی کو فضا کے پانی سے الگ کیا گیا۔ تو اسکالر حضرات یہ کہتے ہیں، مفسر حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ جو پانی اوپر جمع کیا گیا تھا وہ طوفان نوح کے وقت وہ پانی بہا تھا، اور آج کی سائنس نے یہ دریافت کیا ہے کہ زیر زمین اس سے بھی بڑا سمندر موجود ہے۔ آج جو سمندر ہمارے ہاں زمین کے اوپر ہے، تو اس کے لیے بھی ایک یہ نظریہ اب قائم کیا جا رہا ہے کہ وہ جو پانی بہا تھا زمین کے اوپر وہ زمین کے نیچے جا کے ٹھہرا ہوا ہے، اور پھر کسی بلا کے لیے، آفت کے لیے، مصیبت کے لیے شاید وہ دوبارہ زمین سے پھوٹے اور زمین کو تباہ کر دیا جائے۔ یہ نظریات میں سے ایک نظریات، میں ذاتی طور پر اس سے متفق نہیں ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے بارے میں ایک اور نظریہ ملتا ہے جو ہمیں آگے زبوروں میں بھی جا کر اس کا ذکر ملتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو یہودیوں کی تھیوری کے مطابق
वो कहते हैं कि आसमान में भी एक समंदर है। तो इस नजरिए से क्या हम इत्तेफाक राय रख सकते हैं? ये या आज की नहीं? साइंस ने इसको किसी हद तक दुरुस्त साबित किया है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे सैयारे दरियाफ्त हो चुके हैं जहां पर बहुत ज्यादा तादाद में पानी मौजूद है, और वो पानी किस किस्म का है ये अभी तक मालूम नहीं हो सका, पीने के काबिल है या किस किस्म के केमिकल से वो बना हुआ पानी है। लेकिन ये एक कंफर्म बात है कि बहुत से सैयारों पे पानी की दरियाफ्त हो चुकी है, और इवन के 40 अरब नूरी साल पे एक सैयारा दरियाफ्त हुआ जो बिल्कुल जमीन की तरह है, वहां पर खुश्की भी मौजूद है, पानी भी उसके ऊपर मौजूद है। तो ये हम आसमान के ऊपर ही ये सब कुछ देखते हैं, तो आसमान के अंदर पानी का मौजूद होना ये आज की साइंस तो साबित कर रही है। अब उनकी थ्योरी किस हिसाब से है ये नहीं जानते, लेकिन आज की साइंस आसमान में पानी की मौजूदगी को जाहिर करती है। जी डॉक्टर साहब, ये जबरदस्त पॉइंट जो है कि वो आपने हाईलाइट कर दिया है कि हमने यहाँ पर दो नजरिए एक साथ सुने हैं। एक तो यहूदी नजरिया, जिसको हम साइंटिफिक प्रूफ के साथ कह सकते हैं कि ये नजरिया जो है कि ये वैलिड है, लेकिन ये ज़ाती राय नहीं है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस जो है कि वो इस बारे में खामोश है। और हमारे लिए जो सबसे सुपीरियर नजरिया होगा, जो बड़ी बात होगी, वो होगा खुदा का कलाम, जो जिंदा पाक कलाम हमें बयान करता है। खुदा का कलाम जो हमसे बातें करता है, हम उसको आगे फैलाएंगे, उसको आगे चलाएंगे, ना कि आज दुनिया की साइंस को, और ना ही हम जोश कल्चर को या उनकी थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम किताब मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो हम जोश के नज़रियात को ज़रूर मद्देनज़र रखते हैं। उनको समझने के लिए बाइबल मुक़द्दस का जो कल्चर बैकग्राउंड है उसको समझने के लिए हमें यहूदी लिटरेचर की ज़रूर हेल्प लेनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या ये जी ये एक बुनियाद है, हमारी शरीयत से ही हम फजल के दौर की तरफ आए हैं। ऐसा नहीं होता, बेशक हम उनको इम्प्लीमेंट अपनी ज़िंदगी पे नहीं कर रहे होते। हम पहली क्लास से मैट्रिक तक जाते हैं, तो हम पहली क्लास को झुटला नहीं सकते कि ये नहीं है। वो दूसरी नस्लें जो हमारे बाद पैदा होती हैं वो उन्हीं क्लासों में से होके फिर हम तक पहुंचती हैं। तो ये हमारी बुनियाद है, शरीयत जो है वो हमारी बुनियाद है, खुदा तक पहुंचाने के लिए हमारा वसीला बनती है, गुनाह की पहचान करवाती है। तो किसी न किसी तौर पर उसकी अहमियत अपनी जगह बरकरार है, लेकिन हरफे कुल समझ लेना और मुस्तनिद समझ लेना या खुदा तक पहुंचने का रास्ता समझ लेना, ये नजरिया दुरुस्त नहीं है। जी बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत खूब। और इसके अलावा डॉक्टर साहब, जिस तरह के हम दरियाए यरदन, दरियाए कुल्सम की मैं पहले क्लिप में भी बात कर चुका हूँ, तो पानी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम देखते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? पानी का इस्तेमाल हमेशा से ही जिंदगी की अलामत रहा है, और इसलिए यीशु मसीह ने पानी से धोने को जिंदगी में शामिल होने की अलामत बनाया है। हम दीगर मज़ाहिब में देखते हैं कि मिट्टी से भी अपने आप को पाक करने की रस्म मौजूद है। अगर मिट्टी दस्तयाब नहीं है तो बिस्तर के ऊपर हाथ झाड़ के अपने मुंह पर फेर लेने की भी रस्म मौजूद है। लेकिन हमारे यहाँ मसीह ने पानी से अपने आप को मसा करने का हुक्म दिया है, क्योंकि पानी जिंदगी है और यीशु मसीह जिंदगी देने आया और कसरत की जिंदगी देने आया था। तो इसलिए उसने जिंदगी की अलामत पानी को इस्तेमाल करने को तरजीह दी। हम पुराने अहदनामे में तेल का इस्तेमाल भी देखते हैं पाक करने के लिए, मसा करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह ने पानी को ज्यादा अवलियत दी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर नुमान कोड़ी का अगर हम जिक्र करें तो क्या ये अच्छी गुड एग्जाम्पल है कि पानी जो है वो शिफा को जारी करता है? पानी नुमान कोड़ी थोड़ी देर के लिए जरूर तिल मिलाया जरूर था। जब उसको कहा गया कि यरदन में जाकर 7 गोते खा, तो वो बहुत बुरा मनाया उसने इस बात का कि मैं यरदन के गंदे पानी में जाके गोते लगाने का मुझे हुक्म दे दिया, क्योंकि वो जर्नैल था। उसकी ख्वाहिश थी कि अलीशा बाहर निकलेगा, कमर में हाथ फेरेगा और मुझे ऑर्डर करेगा और मैं फिर उसको इनाम कराम दूंगा। वो इनाम कराम भी साथ लेके आया था, लेकिन सब कुछ उसकी तवक्को के खिलाफ हुआ। और यरदन के गंदे पानी में जो समझता था कि मेरे मुल्क की बनिस्बत गंदा पानी है, तो उसने कहा कि मेरे मुल्क में इससे साफ पानी वाले दरिया हैं, अगर पानी में ही गोता लगाना तो मैं तो वहां भी लगा सकता था।
तो उसके छोटे जर्नैलों ने उसको समझाया कि तू बड़ी उम्मीद लेके आया था कि महंगा महंगा तेरा इलाज हो तेरी हैसियत के मुताबिक, लेकिन जब महंगा इलाज होता तब भी तो तुझे करना था। अब ये सस्ता इलाज उसने बता दिया है, तो बेहतर है कि तुझे ये इलाज कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। तू इस वक्त मजबूरी में है और मजबूरी का नाम शुक्रिया होता है, तुझे तो अपने इलाज से गर्ज होनी चाहिए। तो अली शाह नबी ने उसको यर्दन में 7 गोते लगाने का कहा। 7 का जो अदद है ये कामिलियत का अदद है, और 7 गोते लगाने का मकसद उसके अंदर ईगो खत्म करना, उसके अंदर गरूर खत्म करना, और उसके अंदर नई पैदाइश का तजर्बा पैदा करना, उसके दिल को नरम करना। हर गोते के साथ उसकी एक आदत को तब्दील करना मकसद था, जिसकी वजह से उसको 7 गोते, ताकि 7 गोतों के बाद इसके अंदर कामिलियत आ जाए और ये कामल तौर पर खुदा को अपना निजात दहिंदा तस्लीम करे। और ये शहादत भी हमें मिलती है कि 7 गोते लगाने के बाद उसके अंदर तब्दीली आई और वो अली शाह के पास आकर उसकी हकीकत को तस्लीम करता है। और ये सारे पानी की वजह से सब कुछ हुआ कि पानी में उसने अपने आप को मसा किया, पानी के हवाले किया, जिंदगी मिली। पानी जिंदगी होता है और उसको उसी पानी से नई जिंदगी मिल गई। बहुत खूब डॉक्टर साहब। मैं यहाँ पर वाज़े तौर पर देखने वालों को बताना चाहूँगा कि देखें कलाम मुक़द्दस की खूबसूरती। तो जब भी हम कोई टॉपिक लेते हैं और वो टॉपिक इतना बयान करने में गहराई रखता है, अलूहियत अपने अंदर लाता है, इल्म इतना उसके अंदर होता है कि हम आमतौर पर उसको बहुत सादा सा समझ रहे होते हैं। लेकिन अभी आप देखें कि हमने पानी से बात स्टार्ट की और हम निम्रोलॉजी तक पहुंच चुके हैं, हमने 7 के अदद पर भी बात की है। कहने का मतलब यह है कि खुदा का कलाम जो है, तो इसीलिए बताया जाता है कि ये एक बहुत गहरा समंदर है। शायद कि आप आज का साइंटिस्ट समंदर की गहराई को नाप सके, लेकिन ऐसा दुनिया में ना तो कोई लेक्चरार है, ना कोई साइंटिस्ट है जो बाइबल को मुकम्मल तौर पर समझ सके, बाइबल के मुकाशफात को बयान कर सके। समंदर की गहराई नापने की बात तो चलो आज एक जगह दरियाफ्त कर ली गई है कि सबसे गहरी जगह वो है, लेकिन मसीह के प्यार पे मैं एक शेर कहना चाहूंगा जो मेरा अपना शेर है कि दिले नादान अभी इजाद नहीं हो पाया, दिले नादान अभी इजाद नहीं हो पाया, वो आला प्यार की गहराई नापने वाला। तो मसीह के प्यार की गहराई को नहीं नापा जा सकता, वो आला भी इजाद नहीं हो पाया। बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत खूब, क्या ही बात है। डॉक्टर साहब, आप लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? लास्ट मैसेज यही है कि अपने दिलों में मसीह की मोहब्बत को पैदा करें। आखिरी दौर चल रहा है, इंसान तबई मोहब्बत से खाली हो रहा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं उस पर आजकल किताब भी लिखने की तैयारी कर रहा हूँ कि आओ खुदा के खिलाफ चले। कि खुदा ने कहा है कि इंसान तबई मोहब्बत से खाली हो जाएगा, हम अपने अंदर तबई मोहब्बत भरें। खुदा ने कहा है कि इंसान सल्तनतों पर सल्तनत चढ़ाई करेगा, झूठी अफवाहें उठेंगी, हम झूठी अफवाहें फैलाना बंद कर दें और खुदा के खिलाफ चलें, अपने अंदर मोहब्बत पैदा करें। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत ही जबरदस्त जो है कि वो मैसेज है हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे देखने वालों के लिए, कि हमें मसीह की मोहब्बत में आगे बढ़ना है, ठीक है। और जो चीज़ें हमें बताई जाती हैं उनको पॉजिटिव लेते हुए उसमें आगे बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते चले जाना है। सो खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारी, फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द। सो डॉक्टर साहब को और मुझे इजाज़त दीजिए। गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया जी, गॉड ब्लेस यू।